ऑडियंस से 2-3 क्वेश्चंस लेंगे। मैम हेलो। मैम मेरा सवाल ये था कि झुंझुनू से यात्री और जुनून तक का जो सफ़र था, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं अपने आप को यात्री के रूप में देखती हूँ. ओके। When I say that, I believe that मैं झुंझुनू से, जैसे मैंने कहा कि I know the story sounds more romantic when I say मैं झुंझुनू में एक गांव से यहाँ तक आई हूँ types. I know it's more cinematic. Yes. But the truth is I was born in Bombay. जैसा मैंने कहा कि मैंने बहुत वक्त बिताया है गांव में, आज भी बिताती हूँ मैं. तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था. अगर मैं अपने सफ़र को देखूं तो इट वाज नॉट समथिंग दैट आई नेवर, मुझे कभी नहीं पता था कि मैं एक्टर बनूंगी. मतलब वो मेरे दूर तक मेरे होता है ना, लिस्ट में नहीं था कि हम सबकी एक डिपेंडिंग ऑन हमारा क्या माहौल है, हमारे चारों ओर कौन लोग हैं, क्या प्रोफेशंस में हैं, हमारी प्रोफेशंस की एक लिस्ट बनती है कि ये करियर में हम जा सकते हैं. दिस वाज नॉट in that list दूर तक. So it was a very unexpected thing to me that happened to me firstly when I was in college. And मुझे पता था कि the day I experienced being in front of camera for the first time, I knew that something had touched me, something had opened up to me to a world that was fascinating. And not just fascinating from, oh my God, it was something inside me really, it stirred my soul. And इसीलिए मेरे लिए आसान हो गया था to be very sure of कि this is what I want to do. I spoke to my parents. I said पढ़ाई मैंने कर ली थी. मैंने कहा मुझे आप 2 साल दीजिए. मुझे लगता है यहाँ कुछ है मेरे लिए. You know, something tells me that this is meant for me. अगर कुछ हुआ तो अच्छी बात है, otherwise I will not have regrets. मैं कम से कम regret नहीं करूँगी. तो वो दिन था और आज का दिन है यार. It's been it was 2007, today is 2023. I hate reminding myself, but I've been around for 15 years now. And the passion I felt then, the love I felt for cinema then, it's only grown stronger. And I feel very charged, you know, when I think of cinema, when I think of acting. I've recently turned a producer as well, and I think that's again something I never thought of. Like हमारे एक plans होते हैं, life के एक plans होते हैं, and I think this is my example is a great example of me just leaving my plans behind and opening myself up every time to what the universe is pointing me towards, and I think this truly was my calling. Hello Kirti. Hi. And Urf Anj. I just love your character. And you know, I love your character in 4 More Shots. It was lovely. I would like to ask you that once you gave a statement that gender equality has actually woken up in last few years. Don't you think so that the double responsibility has been doubled on girls actually? We are working also, plus we have to work at home also, because anyhow we are living in India. तो इंडिया में जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो यही रहती है कि घर पे आके खाना भी आप बनाओ और ऑफिस में जाके काम भी आप करो. So can you elaborate that statement and what your views are on this? Firstly, I do believe that people are understanding this concept. People are accepting this concept a lot more. ये बिल्कुल मुझे लगता है from my perspective कि सत्य है. Yes, I exactly know what you mean. कि मतलब इक्वालिटी तो आई है, बट हम काम भी करें और वापस आके खाना भी हम ही बनाएं टाइप्स. ये जो सिलसिला है, क्योंकि पहले काफ़ी सालों से औरतों का रोल सिर्फ ये होता था कि होम मेकर हैं, घर बच्चों का ध्यान रखिए, खाना बनाइए, whatever, you know. तो ये रोल अभी शिफ्ट हो रहा है क्योंकि आज की जो जनरेशन है, lot of the women are working women, right? उन्हें काम करना है, वो पढ़ती हैं, उन्हें करियर चुनना है, काम करना है, पैसा कमाना है, and want to have their own life, right? So yes, this is shifting कि हम भी काम करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, हम भी बराबरी का कंट्रीब्यूशन करेंगे, या हमें भी बराबरी चाहिए in terms of whether they are in their own parents' house या if they get married to someone. But ये तो अभी हम उस फेज़ में हैं जहाँ पे रोल तो चेंज कर लिया, लोगों की समझ भी चेंज हो रही है.
लेकिन ये जो बीच का फेज़ है कि खाना कौन बनाएगा, मतलब हाँ तुम काम कर लो, तुम हो जाओ, सब कुछ कर लो, पर ये तो बनाना पड़ेगा, राइट? सो दिस इज़ वेयर द मेन कम इन द पिक्चर. मुझे ये भी पता है कि जो आज का जो मेल जनरेशन है, the marriages that I see around, the couples that I see around, उसमें जो है ये कॉन्सेप्ट अब चेंज हो रहा है, जहाँ पे दोनों काम करते हैं, दोनों आके घर पे काम में हाथ बटाते हैं. तो अभी मुझे लगता है कि समझ आ रही है सबको, लेकिन नाउ इट्स द टाइम फॉर मेन टू up their game, because we have upped our game, and I think it's time for men to up their game. And ये जो gender roles हैं, इनको थोड़ा हमें अपने लिए redefine करना पड़ेगा. और मेरे को लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि when I go abroad में तो सारा काम ही जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों को करना पड़ता है. वहाँ पे जेंडर रोल्स बहुत कम हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर वर्किंग. जो चेंज हम अभी देख रहे हैं इंडिया में आता हुआ, ये काफ़ी टाइम से बाहर है. सो वहाँ पे ये रोल्स सेटल हो चुके हैं. सो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, मुझे लगता है ऑफ कोर्स द men growing up now, I think their mothers and their fathers need to teach them this. And वो तो देखिए शुरुआत तो वहीं से होती है. And when they grow up, when they have a girlfriend, when they have a wife, I think it's their job also to teach the men how to share everything. And I think जो मज़ा शेयरिंग का है वो शायद उस वक्त होता था कि आपका एक रोल है, मर्द का एक रोल है. But lot of things are changing, and I think the most intelligent thing to do is to change with the change, not to be stuck in the past. So yeah. सवाल था कीर्ति जी, आपने जैसे कहा कि 15 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपको अभी और पहले के उसमें क्या फ़र्क दिखता है? पहले OTT नहीं था, कम चैनल थे या सिर्फ स्क्रीनिंग ही थी, तभी और उसमें क्या खास फ़र्क बहुत दिखता है. वेरी सिंपली ऑफ कोर्स द होल स्ट्रीमिंग थिंग हैज़ चेंज्ड फ्रॉम जहाँ पे कुछ बॉलीवुड फिल्में होती थी, टेलीविज़न ऑफ कोर्स भर के होता था, जो पर्सनली मुझे नहीं करना था. अभी तो फॉर्मेट चेंज हो गया है ना. अभी तो आपके पास लिटरली आप अपनी कन्वीनियंस पे कभी भी बैठ के फ़ोन पे, लैपटॉप पे, टीवी पे. सो द होल इट्स अ बिग शिफ्ट. जो हमारा सिनेमा जाने से लेकर घर पे टेलीविज़न इतने बजे का शो है, 9 बजे का शो, सब बैठ के देख रहे हैं. फ्रॉम दैट टू कम टू द पॉइंट वेयर you have access to content from all over the world. अपनी सहूलियत पे देख सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे देख सकते हैं. तो ये बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया है. हाय मैम, आई एम नीलेश तिवारी. तो मैम मैं आपको 4 More Shots Please से जानता हूँ कि आपका जो कैरेक्टर था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था. तो मैम जब आप तो एक नॉन बॉलीवुड बैकग्राउंड से आते हैं, तो उसके बाद जो आपका फिल्म में आने का जो मोटिवेशन था स्ट्रगलिंग पीरियड में खासकर, तो मैम वो क्या मोटिवेट करता था आपको कि आप स्ट्रगलिंग फेस में भी चलते जा रहे हैं? आपको रिजेक्शंस मिलते हैं, सबसे ज़्यादा रिजेक्शन तो मेरे हिसाब से इसी में मिलते हैं, उसके बाद भी चलते जाना, तो मैम क्या मोटिवेट? चलोगे नहीं तो क्या करोगे? नहीं मैम, कुछ मोटिवेट्स तो करता होगा. जैसे बहुत सारे लोग आजकल, हज़ारों लोग रोज़ मुंबई में उतर रहे हैं एक्टर बनने के लिए. मैम हर इंसान तो नहीं बन पाता, कुछ तो मोटिवेशन रहता है जो कि वहाँ तक पीक तक पहुँचाता है. एक तो सबसे पहले अपनी खुद की पहचान रहती है, खुद की परख रहती है. इतने सारे लोग जो जैसा आपने कहा एक्टर बनने आ जाते हैं, आई थिंक पहला सवाल अपने आप से ये करना चाहिए दैट डू आई रियली हैव इट इन मी. ओके, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुकिंग प्रिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैविंग 6 packs और व्हाटएवर. आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप एक्टर बनने आए हैं तो क्या आपको एक्टिंग आती है? अगर आती है तो कितनी अच्छी आती है, राइट? सो मुझ में ये कॉन्फिडेंस हमेशा था कि मैं एक्टर तो बेहतरीन हूँ. तो आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट रियली केप्ट मी गोइंग. मुझे, और जब भी मैं व्हेनेवर आई वाज नॉट एक्टिवली वर्किंग, मैं अपने क्राफ्ट पे काम करती थी. सो जस्ट बिकॉज आई थॉट आई न्यू एक्टिंग डजंट मीन दैट मैं घर पे बैठ के I used to not do anything. I was always working on my acting. I was always doing theatre. I was always learning more and more. I was always watching good cinema. तो जब मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को इतने प्योरिटी के साथ, इतने ऑनेस्टी के साथ अप्रोच करते हैं,
और तो मुझे लगता है I truly believe that there comes a day that the universe just comes with you, and I think that's what happened for me and a lot of other people. I'm sure a lot of people have these stories. Ki I believed in what I wanted to do. I kept working towards it, and हर चीज़ का ना एक वक्त होता है, एक सही वक्त होता है. I think you just have to have the patience to wait for that right time too. So a combination of all these things, I think it was meant to be.